अब समाचार विस्तार से। मंत्री केटीआर ने कहा कि निर्माण क्षेत्र में जापान दुनिया के लिए रोल मॉडल है। जापान में निर्माण संस्कृति अद्भुत है। केटीआर ने बताया कि भारत को चीन+1 के विचार को अपनाना चाहिए, जिस पर वैश्विक कॉरपोरेट्स द्वारा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और अन्य देशों की सभी निर्माण कंपनियां भी भारत में अपनी इकाइयां स्थापित करने में काफी रुचि दिखा रही है। Was indeed something that we wanted to celebrate. So my compliments to you, the entire team of Daifuku, on choosing. You made the right choice, I can tell you. You've chosen Telangana and Hyderabad, you've made the right choice. But just a couple of things. Srinivas Garu seems to be a huge champion of the manufacturing piece, manufacturing ecosystem. I think there's plenty of industrialists in the audience who also are champions of manufacturing ecosystem. Before I came here, I had a meeting with the new US Consul General who's come to Hyderabad, Jennifer Larson. So she asked me a very interesting question. She said, what do you think about manufacturing? What do you think about services? What do you think about the primary sector? As an industries minister, you need to obviously give me your perspective, your state's perspective, and how do you see this landscape changing over the next few years, next few decades? So one of the things I told her, whoever I meet, wherever I meet, whichever industrialist, whichever potential investor that I meet, they have a renewed enthusiasm towards setting up a manufacturing base in India. Especially post the pandemic, post-COVID, where the world has realized that there is too much dependence on China for everything, for bulk drugs, for medical supplies, for everything literally. And when the supply chain was disrupted, I think every single industrialist, be it small, micro, medium or large, was affected in one way or another. So the world has started really thinking about this excessive reliance and excessive dependence on China. You talk to the biggest of the biggest players, the Fortune 500 companies or even the smallest of players, they all tell me the same thing. They all tell you that there has to be a China plus one strategy. You can manufacture in China for China, but for the rest of the world needs, we need to start looking at other bases. Now, because we are similar in terms of our sizes, China and India, 1.4 billion people, 1.4 billion people. So in terms of the workforce, in terms of think force, people will draw that oversimplified comparison and say, if we are moving away from China, a logical thing to go to, logical place to go to would be India. But when a lot of overseas investors, be it Japanese or Americans or Europeans, they ask me, if China is able to do a few things in a certain way, why can't India do it? I only tell them one thing. China is a country which is very homogeneous, which is very unique in terms of how it is structured, in terms of how it is controlled, in terms of how it is administered. But India is very different. India is a democracy to begin with. India is not one, but there are 28 different Indias, if you ask me, because of the federal structure we have. Each state is so uniquely empowered. The makers of our constitution had envisioned India as a union of states. So therefore, each state, and especially the gateway that you choose to enter India through, will determine your impression of India, will determine how easy you find doing business in India. That's the general thought I leave with any of my potential investor. पूर्व डिप्टी सीएम दामोदर राजन नरसिम्हा ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी में 8 साल से एक नई बीमारी शुरू हो गई है और इस बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है। दामोदर राज नरसिम्हा ने हैदराबाद में संयुक्त मेदक जिले के नेताओं के साथ पीसीसी पदों पर नियुक्ति को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी परोक्षवाद की बीमारी से ग्रसित है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में ऐसी ताकतें हैं जो कांग्रेस में रहकर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का समर्थन कर रही है। पीसीसी महासचिव बनाए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आर लक्ष्मण यादव को बधाई दी। वीएच जिनके नाम की पीसीसी महासचिव ने सिफारिश की थी का उनका आवास पर शॉल ओढ़कर स्वागत किया। हनुमंतराव ने मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम में अंबरपेट कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और प्रशंसक शामिल हुए।
कैसा चल रहा है वो? टीआरएस पार्टी जो बीआरएस बन गई और वह राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीआरएस का राष्ट्रीय कार्यालय कल दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर खुलेगा। उसके लिए बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के सीएम केसीआर पार्टी कार्यालय में राजश्यामला और नवचंडी यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। कई नेताओं ने इस संदर्भ में नई दिल्ली में कई जगहों पर बीआरएस का फ्लेक्सी लगाया। हालांकि इन फ्लेक्सी को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने हटा दिया। अधिकारियों ने खुलासा किया कि बिना अनुमति के फ्लेक्सियां लगाए गए थे, इसलिए उन्हें हटा दिए गए। तेलंगाना बीसी आयोग के अध्यक्ष वकुला भरणम कृष्ण मोहन राव ने तेलंगाना भाषा का अपमान करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। देश में कितने जानवर हैं इसकी गणना तो होती है, लेकिन दुख की बात यह है कि बीसी की कोई गणना नहीं है। कृष्ण मोहन राव ने कहा कि तेलंगाना राज्य सरकार का विधानसभा में जाति गणना करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार की अवहेलना अपमानजनक है। उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार ने बीसी के लिए पिछले 8 साल में कौन सी योजना लागू की है। हाईकोर्ट द्वारा बीसी के हिसाब किताब के निपटारे का आदेश दिए जाने के बावजूद शासक ध्यान नहीं दे रहे हैं। कृष्ण मोहन राव ने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार 2024 तक जातिगत जनगणना पूरी नहीं करती है तो वे एक और आंदोलन की तैयारी करेंगे। इसी तरह उन्होंने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन से तेलंगाना भाषा पर अपनी टिप्पणी वापस लेने की मांग की। हैदराबाद में अवैध इमारतें और झोपड़ियां आम हैं। इन्हें हटाना जीएचएमसी और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए गर्दन पर तलवार लटकने जैसी कहावत साबित होती है। हाल ही में ऐसा ही हुआ। कोंडापुर में पार्क क्षेत्र में अवैध झोपड़ियों को हटाने को लेकर तनाव हो गया। जीएचएमसी के कर्मचारी कोंडापुर जेवीजी हिल्स के पार्क क्षेत्र में अवैध झोपड़ियों को हटा रहे थे। बल्दिया के अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से पार्क में करीब 25 झोपड़ियां हैं। कई शिकायतों के बाद बल्दिया के अधिकारी पुलिस की मौजूदगी में झोपड़ियां को हटा रहे थे। झोपड़ियों को खाली करने पहुंचे स्थानीय भाजपा नेताओं रवि कुमार यादव की अधिकारियों से कहासुनी हो गई। भाजपा नेताओं ने पूछा कि अगर पीड़ितों को तुरंत सड़क पर फेंक दिया गया तो कैसे। स्थानीय भाजपा नेता रवि कुमार यादव ने झोपड़ियों में रह रहे पीड़ितों को पक्के मकान देने की मांग की। झोपड़ी खाली करने को लेकर हंगामा हुआ। दूसरी ओर आज बिना किसी पूर्व सूचना के 15 साल से मस्जिद बांदा हाई टेंशन रोड में रह रहे झुग्गियों को अवैध रूप से हटा रहे अधिकारियों और पुलिस को रोकने गए भाजपा के प्रदेश नेता रवि कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। कोमपल्ली जिले के मेडचल स्थित सुचित्रा एकेडमी में फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पीवी सिंधु ने शिरकत की और ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। एथलीट पीवी सिंधु ने समाज में सभी से अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहतर प्रथाओं को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। यह कहकर केंद्र सरकार के फिट इंडिया कार्यक्रम विशेष रूप से छात्राओं के लिए शुरू किया था और अगर कोरोना के कारण इस कार्यक्रम में देरी हुई तो सभी के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। वर्तमान दौर में युवाओं को शिक्षा के साथ साथ खेल कूद कर विशेष ध्यान देने के साथ साथ कुछ समय योगा जैसे कार्यों में भी लगाने को कहा गया है। सिंधु ने कहा कि 2019 में केंद्र सरकार ने फिट इंडिया कार्यक्रम विशेष रूप से छात्रों के लिए शुरू किया था और अगर कोरोना के कारण इस कार्यक्रम में देरी हुई तो सभी के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। वर्तमान दौर में युवाओं को शिक्षा के साथ साथ खेलकूद पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ कुछ समय योगा जैसे कार्यों में भी लगाने को कहा गया है। पीवी सिंधु ने अनुरोध किया कि उम्र की परवाह किए बिना सभी को अपनी दैनिक गतिविधि के रूप में खेल और व्यायाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों के मामले में माता पिता को उन्हें वह स्वतंत्रता देनी चाहिए जिसकी उन्हें आवश्यकता है और उन्हें खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस कार्यक्रम में उप खेल प्राधिकरण निदेशक डॉक्टर शरद चंद्र यादव, कोच विधि चौधरी एवं प्रस्ता राव ने भाग लिया।
मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद में ईसाई परिवारों को क्रिसमस उपहार बांटे। लोगों को त्योहारों को खुशी खुशी मनाने की सलाह दी गई। सरकार की मंशा है कि त्योहार के दौरान गरीब खुश रहे। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर के आदेशानुसार उपहार वितरण के साथ ही भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने चर्चा और ग्रेवयार्ड के विकास के लिए अधिकतम धनराशि आवंटित की है। इसके अलावा 10 करोड़ की लागत से ईसाई भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर उन्होंने याद दिलाया कि सरकार ने सबसे महंगे क्षेत्र में 2 एकड़ जमीन आवंटित की है। हाईकोर्ट ने वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला के पद यात्रा को अनुमति दी। उन्होंने पूछा कि अदालत की अनुमति के बाद पुलिस पदयात्रा को मना कैसे कर सकती है। उन्होंने टिप्पणी की कि राजनेता पदयात्राओं के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। शर्मिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि पुलिस वरंगल जिले में पदयात्रा की इजाजत नहीं दे रही है। याचिका में वरंगल सीपी को पदयात्रा की अनुमति देने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। पुलिस ने अदालत को बताया कि शर्मिला ने राजभवन में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट ने सवाल किया कि अगर राजभवन के पास आपत्तिजनक टिप्पणी दी तो पदयात्रा की अनुमति क्यों नहीं दी गई। राजनीतिक नेताओं के लिए एक दूसरे की आलोचना करना आम बात है। इसके साथ ही पदयात्रा की अनुमति देने के आदेश जारी कर दिए गए। कोर्ट ने शर्मिला को पहले दी गई शर्तों को याद रखने की सलाह दी। बीआरएस नेता और एमएलसी कल्वकुंतला कविता ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बंडी संजय की उनके खिलाफ की गई टिप्पणी से उन्हें दुख पहुंचा है। क्या बीजेपी में महिलाओं के सम्मान की संस्कृति नहीं है? आज हुई मीडिया चिट चैट में कविता ने भाजपा सरकार के व्यवहार पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक आलोचना हो सकती है, महिलाओं का अपमान करना बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है। अतीत में मोदी ने कैसे ममता बनर्जी का अपमान किया, या बंडी संजय मेरा इस तरह अपमान कर रहे हैं। सांसद होते हुए भी उन्होंने तेलंगाना राज्य को 1 रुपया भी नहीं दिया। बंडी संजय केवल महिलाओं का अपमान करना जानते हैं। शुभ मुहूर्त शुरू होते ही महानगर में शादी समारोहों के मद्देनजर खरीदारी के लिए मार्केट में भीड़ उमड़ रही है। कोविड संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने से शादियों की भव्यता हर कदम पर फिर से दिखाई देने लगी है। आज की पीढ़ी अपनी शादी की रस्मों में मस्ती देखना चाहती है। साथ ही यह माना जाता है कि समारोह पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। वे ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना पसंद करते हैं और प्राकृतिक उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। वही कहा जाता है कि किसी बात की कोई कमी नहीं होनी चाहिए।